Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine and happy in your life. Okay, students, it's your third class of science subject, and today in this class we are going to read our first chapter of science book, and for this we will focus on book for reading. So you all just open your science book and listen to me carefully so that you get knowledge, and it will also clear your basic concept regarding science. Our first chapter of biology portion is plants and their system. So students, open your book, and in this chapter we will cover following reading points, and after reading all these points, inshallah we'll able to explain and understand all these points. Number 1 point is introduction about plants and system. Number 2, structures or part of a plant. Number 3, tissues and cells. Number 4, organ and organ system. Number 5, transportation of food and water, that is by xylem and phloem. Number 6, structure of a leaf internally and externally. Number 7, different processes, that is osmosis and transpiration. Number 8, support system. And the last topic of our this chapter is reproduction in plants, that is by flowering of a plant. Okay, so students, it's the first page of your chapter number 1, which is plant and their system. You can see the wording of this is not clear in this picture, so moving towards this, here I cut the picture which is mentioned in your book. In this picture you see 3 different parts of a plant is showing. Okay, so let's read about these description. Plants are living organisms, but not all plants look the same as each other. A tree is very different from a primrose, and a piece of pondweed looks nothing like a rose bush. However, they all have a similar structure. प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो प्लांट्स जो हैं वो एक दूसरे से काफ़ी हद तक मुख्तलिफ नज़र आते हैं. यहाँ आप देखें 3 डिफरेंट आपको पिक्चर्स नज़र आ रही हैं. जैसा कि एक जो ट्री है वो काफ़ी हद तक डिफरेंट है एक रोज़ से, और इसी तरह ये जो आपके पास पॉन्ड वीड है, ठीक है, तालाब में जो वीड्स होते हैं वो काफ़ी हद तक जो है वो रोज़ के साथ जो डिफरेंट बुशेस होती हैं ना उनकी जैसा लगता है, उससे मुशाबकत रखता है. ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो इन सब का स्ट्रक्चर जो है वो सेम ही होता है. ठीक, सो स्टूडेंट्स, here a complete structure of a plant is showing. Let's start reading about it. Roots hold a plant in place in the ground and also take it in the water that needed by a plant. ओके स्टूडेंट्स, रूट्स क्या करती हैं? रूट्स जो हैं वो ज़मीन के अंदर से पानी को एब्जॉर्ब कर देती हैं और पौधे के हर उस पार्ट्स पर जहाँ उस पानी की ज़रूरत होती है वहाँ पानी को पहुँचा देती हैं. ठीक, द stem is a plant's main support above the ground. It holds the leaves so that they can get light for photosynthesis and the flowers to attract insects. स्टेम का क्या काम होता है? स्टेम जो है ये बेसिक सपोर्ट सिस्टम है एक पूरे जो प्लांट होता है उसके लिए. ठीक है, ये स्टेम क्या करता है, ये जो रूट्स के अबव यानी ग्राउंड के अबव का जो पोर्शन होता है प्लांट का, वहाँ पर एक पूरे उसके स्ट्रक्चर को, प्लांट के स्ट्रक्चर को सपोर्ट दे रहा होता है. ठीक है, जिसकी वजह से डिफरेंट जो उसके लीव्स होते हैं उनको इसने होल्ड किया हुआ होता है, और उस लीव्स की मदद से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो परफेक्टली अपनी सनलाइट की मदद से वो परफॉर्म कर रहा होता है प्लांट. ठीक है, इसके अलावा ये स्टेम जो है, इस स्टेम के ज़रिए से ही डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं और उसी पर जो है वो फ्लावर्स भी जो है वो निकलते हैं. तो वो फ्लावर्स क्या करते हैं, वो डिफरेंट इंसेक्ट्स को अपनी जानिब अट्रैक्ट करते हैं. लीव्स आर वेयर
a plant make its food during photosynthesis? Leaf come in all shape and size. लीव्स क्या करते हैं जी? लीव्स जो हैं वो प्लांट के ऊपर होते हैं, और लीव्स का मेन रोल क्या होता है कि लीव्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो लीव के ज़रिए परफॉर्म होता है। ठीक, फोटोसिंथेसिस का पूरा एक मेन टॉपिक है जो इंशाल्लाह हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक, ओके। तो फोटोसिंथेसिस अगर मैं अभी शॉर्टली आपको बता दूं तो वो ये ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो प्लांट है वो अपना खाना जो है वो ख़ुद प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, और जो ये शेप्स और साइज़ हैं लीव्स की वो अकॉर्डिंग टू द स्पीशी होते हैं, यानी डिफरेंट प्लांट्स के आपने देखे होंगे लीव्स जो हैं वो डिफरेंट साइज़ के होते हैं और डिफरेंट शेप्स के होते हैं। अब आ जाते हैं फ्लावर्स पर। तो फ्लावर्स का क्या काम होता है? फ्लावर्स जो हैं क्या पढ़ रहे हैं हम, देखें। फ्लावर्स कंटेन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट. There are many type of flowers, but most of them have brightly colored petal and are smelly. फ्लावर्स जो हैं वो मेन पार्ट होता है किसी भी प्लांट का, ठीक है, जो कि मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है प्लांट का, ठीक है, जिससे रिप्रोडक्शन होती है, जिससे फ्रूट बनता है, और फ्रूट के अंदर आपको पता है क्या होते हैं? सीड्स होते हैं, और वो सीड्स क्या करते हैं? सीड जो है वो सॉइल में जाकर जर्मिनेट करते हैं। ठीक है, तो किसी भी प्लांट का फ्लावर जो है वो मेन पार्ट होता है उस प्लांट का। ठीक, अब ये जो फ्लावर्स हैं ये बहुत तरह के होते हैं, और बहुत से फ्लावर्स के जो पेटल्स होते हैं वो ब्राइटली कलर्स के होते हैं, यानी कलरफुल्स होते हैं। ठीक है, और जो है उनके अंदर काफ़ी हद तक स्मेल्स भी पाई जाते हैं, यानी कुछ फ्लावर्स की स्मेल बहुत अच्छी होती है, या मतलब इतनी अच्छी होती है कि इंसेक्ट्स जो हैं वो ख़ुद अट्रैक्ट करते हैं, और इसके अलावा कुछ की स्मेल इतनी शार्प होती है और पंजेंट होती है कि जो इंसेक्ट होते हैं वो ख़ुद उससे दूर हो जाते हैं। ठीक, अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा? बर्ड। बर्ड आर वेयर ग्रोथ स्टार्ट। बर्ड ऐसा पार्ट होता है प्लांट का जहाँ पर ग्रोथ जो प्लांट की होती है वो स्टार्ट हो जाती है। ग्रोथ टेक प्लेस एट द टिप ऑफ रूट एंड शूट। प्लांट की जो ग्रोथ है वो कहाँ से होती है? रूट्स की टिप्स से लेकर, जो रूट्स की टिप्स होती हैं वहाँ से लेकर शूट तक। ठीक है, अब शूट और रूट में क्या डिफरेंट है? यहाँ आप देखोगे जो डायग्राम मेंशन है, इस डायग्राम के जो रूट के नीचे वाला पोर्शन है, यहाँ पर आप देखो 2 टाइप्स की रूट्स मेंशन है, प्राइमरी रूट्स एंड सेकेंडरी रूट्स। ये दोनों रूट सिस्टम जो है अंडर द ग्राउंड, ये रूट सिस्टम कहलाता है। ठीक है, अब ज़मीन के ऊपर का जितना भी पोर्शन है वो शूट सिस्टम कहलाता है। क्लियर हो गया? सो here you can see in this picture you see okay students, you can see a complete colorful diagram of a plant mentioning its different important parts with their function. जो कि मैंने आपको बताया कि अंडर द ग्राउंड जो जितनी भी रूट्स हैं उस पूरे सिस्टम को आप कौन सा सिस्टम कहेंगे? रूट सिस्टम। और अबव द ग्राउंड यानी ज़मीन के ऊपर का जो पार्ट होता है प्लांट का, उसको आप क्या कहोगे? शूट सिस्टम कहोगे। ठीक है, अब किसी भी प्लांट के अंदर कुछ मेन पार्ट्स होते हैं, हमने डिटेल में बहुत सारे पार्ट्स पढ़े, लेकिन जो मेन पार्ट्स हैं ना वो ये हैं। नंबर 1 हम बॉटम से जो है टॉप की जानिब पढ़ेंगे। ठीक है, तो लास्ट हमारा देखें क्या है? रूट्स। रूट्स क्या करती हैं? जो बोल्ड वर्ड्स में लिखा हुआ है वो रूट्स है। ठीक है, और उसके नीचे जो मेंशन है वो उसके फंक्शंस हैं। तो रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। रूट्स जो हैं वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं जो कि ग्राउंड में होता है। अब आ जाए स्टेम पर। स्टेम क्या करते हैं? स्टेम सपोर्ट द प्लांट। स्टेम जो हमने पहले पढ़ा, स्टेम पूरे प्लांट को सपोर्ट करता है। देन वी हैव फ्रूट। फ्रूट प्रोटेक्ट द सीड्स, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि फ्लावर से फ्रूट बनता है, और फ्रूट क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है सीड्स को। देन वी हैव लीव्स। लीव परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। लीफ जो है वो कौन से प्रोसेस परफॉर्म करते हैं? फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, देन आवर मेन पार्ट ऑफ दिस प्लांट इज फ्लावर which help in reproduction. Okay,
So students, that's all for today's class, and inshallah we'll complete our remaining topics in the next class. I believe you get some knowledge from our today's class, and here is one suggestion for all of you that students, it's a best time for all of you to improve your reading, writing and learning skill. You should have to focus on these skills in your free time, at least one page of every subject once in a day. So students, hope that all of you get my suggestions seriously. Now I end this class here, and thank you so much for listening and learning. Allah Hafiz.